Roman countrymen, lend me your ears. We've all heard these lines from a very famous play by Shakespeare called Julius Caesar. While we all know the story of Caesar, we are very few of us are aware of the disease that he suffered from, which people often term as the falling sickness because of the regular fits he used to get. People often couldn't understand his symptoms, and it was widely believed that he was touched by the gods. Lately, it was found that he actually suffered from a neurological disorder called epilepsy. Welcome to the latest episode of Wake Up to Health Talks. Neurological disorders are the leading causes of disability and second leading cause of deaths across the world. And yet, there is a lot of unawareness and taboo associated with these diseases. Today, we are going to talk on this pressing disorder, and we have with us Dr. Rakesh Bharodia, a leading neurologist from Surat. Welcome, Doctor. हेलो। So, Dr. Rakesh, जब मैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ रही थी, आई वाज एक्चुअली सरप्राइज्ड टू सी कि बहुत सारे लोग सफर करते हैं इन डिजीजेस से. आई एक्चुअली फाउंड आउट दैट 1/6 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन सफर फ्रॉम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. सो मतलब बिफोर वी मूव ऑन, मैं बस ये जानना चाहती हूँ, व्हाट आर दीज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स, एंड हम कैसे पहचान सकते हैं कि किसी को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है कि नहीं? As we all know, there is a day-to-day increase in the stress and the competitiveness, and also there is a poor lifestyle habits and the poor hygiene in the food what we are taking. So there is day-by-day increase in the number of cases of neurological as well as psychological problems. And the most commonly what we are seeing in our OPD is headache, anxiety, depression. These are predominantly neurological plus psychological, and other neurological problems that are quite rapidly increasing are stroke, like paralysis. Patient is having weakness of one side of the body, and other disorders like epilepsy, convulsion, and other neurological problems are rare, but they are routinely. What we are seeing in our OPD is like movement disorders, Parkinson disease. Many patients having vertigo, giddiness, and peripheral neuropathies. They are having a numbness or the tingling sensations in their limb. So these are the common neurological problems, and as I already said, the most common and the maximum number of patients are suffering from headache and other anxiety and depression related problems. And in neurology, stroke and epilepsy are the most common problems what we are seeing in day-to-day basis. तो सर, जैसे कि आपने बताया कि इतने तरह के न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, ये मतलब किसी के इफ आई एम सफरिंग फ्रॉम इट और कोई भी अगर इससे सफर करता है, तो क्या उनके दिनचर्या और क्या उनके एवरीडे लाइफ में भी इट अफेक्ट्स? जनरली सारे डिसऑर्डर्स अफेक्ट नहीं करते. जो मेजोरिटी केसेस में अगर माइनर चीज है, अगर हेडेक है, एंजाइटी है, तो डे टू डे लाइफ में उतना अफेक्ट नहीं करेगा. जो मैक्सिमम डिसऑर्डर्स लाइक स्ट्रोक है, एपिलेप्सी, they can affect much as compared to other disorders because they affect their day-to-day ability to perform the work. अगर पेशेंट को स्ट्रोक है तो एक साइड का हाथ या पाँव काम नहीं कर पा रहा है, तो अपना जॉब सही तरीके से नहीं कर पाएगा. And another thing, if patient is having epilepsy, so they cannot, if patient is having a frequent episodes of convulsion, then they are not able to do the driving jobs, or if the person is having a work with machinery which endangers the life. तो अगर कोई बड़ी मशीन या कोई जोखिमी चीजों के साथ अगर काम करना है और उस दौरान अगर खींच या एपिलेप्सी एपिसोड आता है, तो इट कैन अफेक्ट पेशेंट्स लाइफ एज वेल. तो एपिलेप्सी पेशेंट्स अगर फ्रीक्वेंसी अगर उनकी ज्यादा है, तो बोला ऐसे कि कोई हाई रिस्क मशीनरीज या फिर ड्राइविंग वाली जो जॉब्स है, तो वो आइडियली अवॉइड करना चाहिए. ओके. और मतलब कि ये एक्चुअली किसी के भी डेली लाइफ में बहुत इफेक्ट कर सकता है, एंड इट कैन डिसरप्ट आपके जॉब ऑप्शंस रिड्यूस हो सकते हैं, एंड आप किस तरह से अपने डेली लाइफ जीते हैं वो बिल्कुल उससे फर्क पड़ सकता है. बट सर, जैसे कि मैं रिसर्च कर रही थी, मैं कुछ दोस्तों से बात कर रही थी, देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ अवेयरनेस अबाउट इट, एंड मैं एक्चुअली पेपर में पढ़ती रहती हूँ कि देयर आर स्टोरीज जब कुछ भी एपिलेप्सी जैसे सिम्टम्स होते हैं तो लोगों को समझ नहीं आता वो क्या करें, तो उसको बहुत ही ज्यादा सुपरस्टिशंस और टैबू के साथ उसको रिलेट कर देते हैं कि जैसे कि मैं कहीं पढ़ रही थी कि कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो गई है उनमें, या ऐसे बहुत सारे सुपरस्टिशंस उनके साथ कनेक्ट कर दिए जाते हैं. क्या आपको अभी भी ऐसे कुछ केसेस आते हैं आपके पास?
अभी पहले के कंपैरिजन में काफी कम पेशेंट्स है, लेकिन अभी भी काफी लोग ऐसे हैं जो पहले मेडिकल एडवाइस लेने की जगह पे और सारी चीजों को ट्राई कर लेते हैं। उनसे अगर उनको फर्क नहीं आता है, फिर वो लोग हमारे पास या फिर कोई फिजिशियन के पास जाते हैं। और मोस्ट कॉमनली ये चीज एपिलेप्सी वाले पेशेंट्स में सबसे ज्यादा होता है। और दूसरे जो पेशेंट्स जो साइकोलॉजिकल, जो हम हम्म हिस्टेरिकल बोलते हैं कि भाई जो अगर हिस्टेरिया का एपिसोड है तो उसमें भी सेम पेशेंट अनकॉन्शियस रहता है 5-10 मिनट के लिए, 15-20 मिनट। तो ये पेशेंट्स में सबसे ज्यादा ये चीज रहती है कि भाई किसी ने उनके शरीर पर कब्जा कर लिया है, या फिर हम्म कोई रूहानी ताकत या कोई शैतानी ताकत उनके शरीर को कंट्रोल कर हम्म रहा है। तो ये सब अभी भी वो चीजें मानते हैं लोग। और कई बार ऐसा भी होता है कि भाई जूता सूंघाना है या फिर ऑनियन हम्म सूंघाते हैं, ये चीज भी अभी भी रूटीनली देखने को मिलती है। बट पहले के कंपैरिजन में काफी कम होता जा रहा है। काफी कम हो गया। पर जैसे कि आपने कहा कि लोग तांत्रिक के पास जाना पसंद करते हैं, पंडित के पास जी। जाना, डॉक्टर से पहले उनके पास जाएंगे, तो दैट कैन एक्चुअली बी वेरी हार्मफुल टू द पेशेंट। मतलब वो अगर आपको सही टाइम पे अगर मेडिकल एडवाइस नहीं मिलती तो दैट कैन एक्चुअली बी वेरी हार्मफुल। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, हाउ कैन वी ब्रेक दिस टैबू, एंड हम कैसे मतलब लोगों में जागरूकता ला सकते हैं कि कुछ भी ऐसा हो तो सबसे पहले उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए रादर देन गोइंग टू अ तांत्रिक। तो इसके लिए हम दो लेवल पे आई थिंक वर्क कर सकते हैं। एक तो पेशेंट एंड उनके रिलेटिव्स, उनका अप्रोप्रिएट काउंसलिंग, पेशेंट को एक्चुअल में क्या बीमारी है, कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, वो उनको सिखाना चाहिए। और उसके साथ साथ एक कम्युनिटी अवेयरनेस कि भाई हम्म सारे लोगों में इसके बारे में थोड़ी अवेयरनेस है। तो उसके लिए कॉरपोरेट वर्ल्ड और गवर्नमेंट, ये दोनों मिलकर उसके लिए काफी ऑलरेडी काम कर रहा है। इट इज बेसिकली लिंक टू आइदर प्रिंट मीडिया है, टेलीविजन है, रेडियो पर एडवर्टाइजमेंट काफी बार आती है कि भाई मिर्गी या ऐसा दौरा आता है, तुरंत आप हॉस्पिटल जाइए। तो ये सब चीज है, पेशेंट एंड रिलेटिव्स फर्स्ट। उसके बाद कम्युनिटी अवेयरनेस पर भी काफी काम होना चाहिए, जिससे लोगों को पता चले कि ऐसे कोई सिम्टम्स है, जैसे हाथ पाँव में झटके आ रहे हैं, पेशेंट बेहोश हो गया है, काम करते करते वो बेसुध हो जाता है, या फिर उनको पता हम्म नहीं रहता है। तो सबसे पहले नियर बाय मेडिकल हॉस्पिटल कोई भी है तो वहां पे पहले पहुंचना चाहिए। बिल्कुल। तो पेशेंट प्लस कम्युनिटी दोनों लेवल पर हमको काम करना चाहिए। एंड बिल्कुल सही कहा कि एक्चुअली अवेयरनेस इज द बेस्ट वे टू ट्रीट दिस। बट आई एम श्योर मेडिकल साइंस आजकल इतना आगे बढ़ गया है, तो ये सारे डिजीजेस ट्रीट करने के लिए काफी दवाइयां और मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल होंगे। तो व्हाट आर द स्टेप्स दैट समवन, किसी के रिलेटिव्स या किसी की फैमिली ले सकती है टू हेल्प देयर फैमिली मेंबर्स गेट बेटर इजीली, एंड व्हाट आर द काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल, ताकि कि जो भी इससे सफर कर रहा है तो वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। एपिलेप्सी में बेसिकली एक चीज सबसे बड़ी जरूरी है कि सबसे पहले एमडी फिजिशियन या फिर डीएम न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट है उनकी आप अपॉइंटमेंट लें, उनसे बात करिए। हम्म उसके बाद उसका जो अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन रहता है, कुछ जरूरी इन्वेस्टिगेशन है, एमआरआई है, ईजी है, और ब्लड इन्वेस्टिगेशन है। इसके बाद हम दो प्रकार का, मतलब एपिलेप्सी में भी बहुत सारे टाइप्स है और बाकी जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है उसमें भी, तो पेशेंट का अप्रोप्रिएट हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, फिर इन्वेस्टिगेशन, ये सारे स्टेप्स के बाद जो फाइनल डायग्नोसिस है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट। और मेजोरिटी केसेस आर ट्रीटेबल रादर देन हम्म नॉन रिलीविंग, या फिर कभी ठीक नहीं हो सकता। ऐसे वाले पेशेंट्स बहुत कम है। जो 80 to 90% पेशेंट्स है दे आर ट्रीटेबल, and majority patients are easily controlled with seizure if we are starting appropriate medications at the appropriate time. हम्म So that's brilliant. मतलब 80 to 90% of the people actually can get better. So I think the best way forward for anyone is to consult their nearest physician or neurologist. मतलब rather than going to a tantric or a pandit, it's extremely important कि वो किसी डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें, ताकि at the right time उनको medicines मिल सके and they can actually go on to lead a very normal life. Thank you. Thank जी you. This has been very informative. Any final thoughts that you would like to share with our viewers? Already I said, most of the neurological problems are treatable if it is diagnosed appropriately at the sorry. If the patients are diagnosed on time, they are evaluated properly and treated appropriately, then it can be, in majority cases, it is 100% curable. So, rather than wasting time to going to other people's or quacks, so directly go to the physician or neurologist, and you will be fine in a very short of time.
Well, I think that was very well said, to not waste time. And if you find any of these symptoms, it's extremely important to get an expert opinion very fast. Thank you, Dr. Rakesh. This has been very informative, and I hope कि हमारे viewers को भी उतना ही informative लगा हो. And it's very important for us to all remember that we're not alone in this. As I said, 1/6 of the world's population suffer from some kind of neurological disorders. So it's important to understand that we're not alone, and it's completely treatable. And as long as we all support each other, we can get the right treatment at the right time. Thank you, Dr. Rakesh, for joining us. And thank you Thank you. viewers for watching us. And see you in the next episode of Wake Up to Health.